Exercise 15B will start from question number 9. All of you, pay attention. The question says mean of 6, 4, 3, 5, 4, 2 is M. The mean of 6, 4, 3, 5, 4, 2. The mean of these numbers is M. Unknown है but उसे M नाम दिया है, ठीक है? The mean of these numbers is M. Before reading the question further, let's first find the value of M. Correct? We can find it because numbers पता है, so I can find the mean. Okay. What is the formula for mean? Mean is sum of all observations upon total number of observations. Okay. So mean is sum of all observations upon total number of observations. 6, 4, 3, 5, 2. So sum of all observation means ये numbers को मैं add करूँगा. 6 plus 4 plus 3 plus 5 plus 4 plus 2 upon total number of observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 observations है. So upon 6. Find the value of this. What is the answer you are getting? Four. Yes, very good. The answer is 4. You will get 24 upon 6, that is 4. So the mean is 4. The mean of the following number is M. मतलब ये mean ही तो M था. तो M क्या मिल गया? 4. Okay, next. And the median of, second part of the question, it says the median of 0, 3, 2, M, 5 is N. Sorry. Yeah. So the question is the median of 0, 3, 2, M and 5. The median of these 5 numbers is N. इनका मीडियन क्या है? N. ओके, क्वेश्चन को समझो. M की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 4 है. करेक्ट? M की वैल्यू 4 है. And I have to find the value of M and N. करेक्ट? तो M तो मैंने ढूंढ लिया है. N फाइंड करना है. N फाइंड करना है मतलब मीडियन फाइंड करना है. करेक्ट? तो इस नंबर्स का मीडियन फाइंड करना है. The steps to find the median is, the first step is to arrange the numbers in ascending order. The first step is to arrange the numbers in ascending order. ये है numbers. M unknown है but M हमने find कर लिया है 4 है तो वही 4 यहाँ पे use करना है. Correct? So let's arrange them in ascending orders. 0, 2, 3, 4 and 5. Arrange in ascending orders. Okay. Total numbers 1, 2, 3, 4, 5. 5 observations. So N is 5. 5 means odd. What is the formula for odd? So median will be N plus 1 upon 2
raised to th means this term, nth term. Okay, so n means n is 5 here, n is 5, so 5 plus 1 upon 2, so that is 6 upon 2, that is third term. Which is the third term? 1 2, this is the third term, 3. So answer is 3. Median means n. Understood? Let's do the next sum. Question number 10. It says mean marks of 30 students of a class is 70. कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स. एंड मीन मार्क्स कितने हैं? Mean marks of 30 students is 70. Okay. Find the marks of the topper if the mean marks of the others is 69. मतलब 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स में से देयर इज वन टॉपर, बरोबर. एक टॉपर है, 29 स्टूडेंट्स है जिन्होंने टॉप नहीं किया है. ओके, द मीन मार्क्स ऑफ अदर्स इज 69. अदर्स इज 69 का मतलब क्या है? जो बाकी 29 लोग हैं ना, उनका मीन मार्क्स है 69. समझ में आ रहा है? दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द मार्क्स ऑफ द टॉपर. ओके, सो टॉपर एक होगा, उसके बाद 29 लोग बचते हैं. उस 29 लोगों का मीन उसने कहा है, द मीन ऑफ द अदर्स, द मीन मार्क्स ऑफ अदर्स इज 69. सो मींस 29 स्टूडेंट्स, mean marks is 69. समझ में आया? क्वेश्चन. ओके, अब क्या करें आगे? हमें ढूंढना है टॉपर्स के मार्क्स. ठीक है, मीन का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन इक्वल्स सम ऑफ ऑल मार्क्स. सम ऑफ ऑल मार्क्स मतलब शॉर्ट में लिखूं तो टोटल सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितने लोग हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. Is this correct? Okay. Mean equals total marks, मतलब sum of all marks. Sum of all होता है फॉर्मूला में, तो total marks upon number of students. Okay. अब फर्स्ट केस 30 स्टूडेंट्स है, करेक्ट, और उनका मीन मार्क्स क्या है? 70. 30 स्टूडेंट्स है और मीन मार्क्स है 70. तो मैं उससे टोटल मार्क्स ढूंढ सकता हूँ. कितना होगा? सी, ये जो इंफॉर्मेशन है, आई पुट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मूला. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस मीन मार्क्स कितना है? 30 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स क्या है? 70. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ये मीन मार्क्स 70 कितने स्टूडेंट्स का है? 30 स्टूडेंट्स का, करेक्ट. सो दिस 30 विल गो हियर. 30 into 70. 30 into 70 is how much? 3 sevens are 21. 2100.
is the total marks of 30 students. समझ में आया मैंने क्या किया? पूरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, मीन मार्क्स था 70। अगर मीन मार्क्स 70 है मतलब वी कैन से दैट हर एक को 70 मिला है, तो सबको अगर 70 मार्क्स मिले हैं तो 30 स्टूडेंट्स को 70 मार्क्स मिले हैं, तो टोटल कितने मार्क्स मिले? सबके मार्क्स को ऐड करेंगे 70 को, ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए पूरे क्लास के? 2100, करेक्ट। तो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं? 2100। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दूं। फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, ओके, एक को मिला है 10 मार्क्स, दूसरे को 20, तीसरे को 30, ओके। इनका मीन क्या होगा? इनका मीन होगा 10 + 20 + 30 दैट इज 60/3। इनका मीन होगा 20 मार्क्स, बरोबर। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है और मीन मार्क्स 20 है। तो जब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू मीन मार्क्स करता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू मीन मार्क्स, तो मुझे क्या मिला? 60। इनके मार्क्स का टोटल क्या है? 60 है। समझ में आ रहा है? सारे मार्क्स को ऐड करके टोटल मार्क्स बनता है, ठीक है। वो टोटल मार्क्स कैसे मिल सकता है? जो मीन वैल्यू है उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करो। तो यही मैंने यहाँ पे किया, जो मीन वैल्यू थी उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला? टोटल मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। अब सेम चीज, सेम थिंग आई डू इट फॉर 29 स्टूडेंट्स। मुझे 29 स्टूडेंट्स का भी पता है। टॉपर को अगर मैं निकाल दूं बाहर, तो टॉपर के अलावा जो 29 स्टूडेंट्स है देयर मीन मार्क्स इज 69, ओके। सो अगेन द फॉर्मूला फॉर मीन इज total marks of 29 students upon number of students, करेक्ट। तो मीन मार्क्स कितना है 29 स्टूडेंट्स का? 69 है मीन मार्क्स, ओके। सो टोटल मार्क्स ऑफ 29 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 29। सो 29 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स क्या है? 69, करेक्ट। मल्टीप्लाई दिस, you will get 2001 equals मीन्स 29 स्टूडेंट्स के मार्क्स को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलता है 2001, बरोबर। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड किया टॉपर के साथ, मतलब तो मिल रहा है 2100, ओके। मतलब टोटल 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 2100 और बिना टॉपर के 29 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 2001। तो इसका मतलब टॉपर के मार्क्स कितने हुए? आई कैन फाइंड दैट इजीली। 29 स्टूडेंट्स का टोटल ये है और 30 स्टूडेंट्स का टोटल ये है। सो टॉपर को कितने मिले? टॉपर्स मार्क्स इज 2100 माइनस 2001, 99। इतने मार्क्स लाने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। एक ज्यादा लाओगे तो भी चलेगा। कॉपी दिस सम।
तो आप ये सब वापस से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। शॉर्ट फॉर्म में देखो, शॉर्ट फॉर्म में क्या है पता है, 29 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स था 60 मार्क्स, बराबर। मतलब समझो कि 29 तो सबको 69 मिले, ठीक है। तो उनका टोटल हो जाता है, उनके मार्क्स का टोटल हो जाता है 2001, ठीक है। अब इसमें टॉपर को भी ऐड कर लो, ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ओके। और टॉपर के साथ जो मीन है क्लास का वो है, मतलब सबको 70 मार्क्स मिले, ठीक है। मीन मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स। सर वापस बोलोगे, नेटवर्क चला गया था, फ्लैट हो रहा है आपकी आवाज मेरे नेटवर्क से। ठीक है, सुनो, मीन मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो 29 स्टूडेंट्स था, तब जब 29 स्टूडेंट्स थे, जब एवरेज मार्क्स थे 60, ओके। मतलब हर एक को समझो 69 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 29 इंटू 69, 2001, ओके। अब जब टॉपर को भी ऐड करेंगे, तो टॉपर को ऐड करने से क्लास का एवरेज ऊपर चले जाएगा, ज्यादा मार्क्स वाले को ऐड करेंगे तो क्लास का एवरेज ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो एवरेज हो गया था सबका 70, इसका मतलब सबको 70 70 70 70 मिले। तो इस बार टोटल क्या होगा, 30 स्टूडेंट्स को अगर 70 70 70 मार्क्स मिले हैं, तो उनका टोटल बच जाता है 210। तो 29 स्टूडेंट्स का टोटल है इतना, 30 स्टूडेंट्स का टोटल है इतना, बराबर। तो ये जो टोटल बढ़ गया है, ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐड हुआ, ठीक है। और जो एक स्टूडेंट ऐड हुआ उसको कितने मार्क्स मिले, 99 मार्क्स मिले। ओके सर, थैंक यू। Okay, next sum. Now all the sums will have this same kind of concept. It is the 11th sum. The mean marks of 20 students is 62. So 20 students और mean marks क्या है, 62, ओके। ये कॉपी करो और टोटल मार्क्स फाइंड करो।
2 students have sent the total marks. Same formula. देखो formula क्या है? That mean equals total marks upon number of students. Correct? Okay. So mean कितना है? Mean is 62. Total marks we don't know. Number of students 20 students है. Okay. So this 20 will get multiplied with 62. Correct? The answer will be 1240 total marks. ठीक है, मतलब 20 स्टूडेंट्स का सबके मार्क्स मिलके कितने मार्क्स है टोटल? 1240. ओके, अब आगे क्या बताएं? 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं? 1240. Now they have told that it was later discovered that one of the students' marks were written wrongly as 86 instead of 68. मतलब एक स्टूडेंट था जिसके मार्क्स लिख दिए थे 86 और उसको एक्चुअल में कितने मार्क्स मिले थे? 68 मिले थे. मतलब 68 उसके करेक्ट मार्क्स थे, बट उसको गलती से 86 दे दिया था. करेक्ट? तो ये गलती है. ओके, अब इसको रेक्टिफाई करना है. तो दे आर सेइंग दैट one of the students marks were wrongly written as 86 instead of 68. Find the correct mean. Okay, so बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टोटल मार्क्स है ना, ये 86 के हिसाब से कैलकुलेट किए हुए थे. ठीक है, बट बाद में मालूम पड़ा कि उसको तो 68 ही मिले थे. तो अभी हमें करेक्ट मीन फाइंड करना है. ठीक है, करेक्ट मीन स्टूडेंट्स 20 ही है, बट एक के मार्क्स चेंज हो गए. तो अभी क्या करेंगे? सी. करेक्ट टोटल. पहले हमारे पास टोटल क्या था? 1240. ओके, उसके मार्क्स 86 काउंट हुए थे, वो गलत थे. ठीक है, जो रॉन्ग मार्क्स थे 86 आर द रॉन्ग मार्क्स. सो 86 को टोटल में से माइनस करो. बराबर. और उसके एक्चुअल मार्क्स क्या है जो होने चाहिए थे? द एक्चुअल मार्क्स आर 68. तो 68 को ऐड करेंगे. समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास के टोटल मार्क्स है 1240. ठीक है, और आपके पेपर में 86 लिखा था और 86 ही काउंट हुआ टोटल में, बट बाद में पता चला आपको 68 मार्क्स ही मिले हैं. तो टीचर क्या करेगी? आपकी 86 को माइनस करेगी टोटल में से. ठीक है, और आपकी 68 को ऐड करेगी जो आपका एक्चुअल मार्क्स है. सो वही हमने यहाँ पे किया है. फ्रॉम द टोटल मार्क्स वी सबट्रैक्ट द रॉन्ग मार्क्स एंड वी ऐड द करेक्ट मार्क्स. ओके, सॉल्व दिस. व्हाट डू यू गेट? One, two, two, two. Correct? So the correct total is 1, 2, 2, 2. Okay. Now we have to find the correct mean. Correct mean कैसे find करेंगे? Normal. Mean क्या होता है? Total marks upon number of students. ठीक है, कौन सा टोटल मार्क्स? करेक्ट टोटल मार्क्स. ओके, सो करेक्ट टोटल मार्क्स क्या है? 1, 2, 2, 2 and total number of students 20. Find this answer. What answer do you get? Answer is 61.1. Correct.
12th one is simple. I hope you have copied. Now, in the 12th question, very simple question. They say the mean of 5 students is 47 kg. So 5 students here, and mean is 47 kg. Okay. If 4 of them weigh 44 kg, 45, 47, 49, 4 लोगों का weight दिया है 44, 45, 47, 49. Find the weight of the 5th student. जो 5th student है उसका weight नहीं पता, तो उसके weight को ले लेते हैं x. जो 5th student है उसके weight को ले लेते हैं x. You can write it also. Let the weight of 5th student be x. ओके, अब मीन क्या होता है? मीन इज टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सेम, करेक्ट. सो मीन इज ऑलरेडी गिवन. मीन 47 केजी है, बोला हुआ है क्वेश्चन में. सो मीन इज 47. टोटल वेट मतलब सबके वेट को ऐड करो. सो 44 प्लस 45 plus 47 plus 49 plus x upon number of students. What is the number of students? 5. Solve this. This 5 will go here. Solve further. You will get 235 equals, add all those numbers. $50 kgs. Okay. 13th one. Again a simple question. The mean height of 8 students is 152. The mean height of 8 students is 152. 8 students और mean height क्या है? 152 centimeters. Okay. 3 more students of height 160, 165, 164 join the group. Find the new mean height. मतलब 8 students का ये mean height था, तो पहले इसका total find कर लेते हैं. Total. Okay. So mean equals total height upon number of students. So 152 equals total upon 8. Multiply this. करेक्ट. मतलब 8 स्टूडेंट्स का टोटल हाइट क्या है?
1216. Okay. Now they are saying 3 more students joined the group. 3 और स्टूडेंट्स ने अगर ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 हो गए. ठीक है. क्या कह रहा हूं मैं? अब वो क्या कह रहे हैं, पहले 8 स्टूडेंट्स थे, अब 3 और लोगों ने ज्वाइन किया. ओके, तो 3 और ज्वाइन करने के बाद अब मीन क्या है? व्हाट इज द न्यू मीन? सो आई हैव रिटन न्यू मीन इज न्यू टोटल ऑफ 11 स्टूडेंट्स, सारे 11 स्टूडेंट्स का टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 8 स्टूडेंट्स का टोटल तो ये है, बरोबर. 8 स्टूडेंट्स का टोटल है 1216. ठीक है. हमें टोटल चाहिए 11 स्टूडेंट्स का, तो बाकी 3 स्टूडेंट्स की हाइट को भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, तभी तो 11 स्टूडेंट्स का टोटल मिलेगा. तो बाकी 3 स्टूडेंट्स की हाइट क्या है? उनकी हाइट है 160, 165, 164. सो 160, 165, 164 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब कितने स्टूडेंट्स है टोटल? पहले 8 थे और 3 ऐड हुए तो 11 हो गए. तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11. फाइंड दिस आंसर. Find it. What is the answer you are getting? $155, correct. मोस्टली सारे सम्स एक्सरसाइज में मीन के ऊपर ही बेस्ड है. मीडियन पे तो स्टैंडर्ड सम्स आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूलाज. थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न जो होगा वो मीन के सम्स में ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The mean marks of 8 girls in a test is 52. ठीक है, तो 8 गर्ल्स है और उनका मीन मार्क्स क्या है? 52. ओके, तो अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं टोटल क्या होगा? टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स. फॉर्मूला नहीं लिखता अभी पूरा. मीन इज टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अभी हमें समझ गया है कि टोटल मार्क्स कैसे मिलता है, जो मीन है इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स. तो 52 इनटू 8. सही है ना? 8 गर्ल्स है और उनका मीन है 52. तो टोटल मार्क्स क्या हो गया? 52 इनटू 8. 52 इनटू 8 416 आएगा. तो गर्ल्स के मार्क्स कितने हैं? 416. आगे बोला है एंड द मीन मार्क्स ऑफ 12 बॉयज ऑफ द सेम क्लास is 51. So 12 boys and mean marks is 51. Okay, see, boys are scoring less marks. 51. So what will be the total marks of boys?
total marks of boys will be 51 into 12. Six one two. अब क्या करना है? What we have to find here is that what is the mean marks of all 20 students? सारे 20 students का mean marks बताओ. So mean of all 20 students क्या होगा? ये 8 स्टूडेंट्स का टोटल और ये 12 स्टूडेंट्स का टोटल, इन दोनों टोटल को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे 20 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स मिलेगा. ये टोटल किसका है? 8 गर्ल्स का. ये टोटल किसका है? 12 बॉयज का. तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा. 612 प्लस 416 अपॉन गर्ल्स प्लस बॉयज टोटल. तो कितने हैं? 8 प्लस 12. करेक्ट. What is the answer you are getting? Correct, Krish. Yes, Sachi. Correct, Krisha. Yes, Rina. Answer is 51.4. Copy it first. Okay. I hope you have understood the sum. Next, question number 15. Nothing like that, Rina. The following numbers arranged in ascending order have their mean and median same. The following numbers arranged in ascending order have their mean and median same. मतलब mean और median दोनों same है. ठीक है. और numbers क्या है? 4, 4, x minus 2, x plus 1, x plus 3, 12, 13. मतलब क्वेश्चन में बोला है कि जो मीन है और जो मीडियन है वो सेम है. ठीक है. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4, 4, x minus 2, x plus 1, x plus 3, 12 and 13. 7 numbers है. ठीक है. Number of terms are 7. Okay. Mean and median are same. Mean and median are same मतलब मैं दोनों के फॉर्मूलाज को इक्वल कर सकता हूँ. इसका फॉर्मूला इक्वल इसका फॉर्मूला. ठीक है. तो मीन क्या होता है? टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स मीडियन क्या है? ऑड है. 7 टर्म्स है ऑड. तो मीडियन विल बी n plus 1 upon 2 raised to th. Okay, and they have told in the question, if you read properly, the following numbers are arranged in ascending order. मतलब जो numbers दिए हैं ना वो already ascending order में arranged है. मतलब ये जो numbers है 4, 4, x minus 2, x plus 1, x plus 3, 12, 13. ये already ascending order में arranged है numbers. ठीक है.
तो ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला हुआ, ये मेरा मीन का फॉर्मूला हुआ, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो टोटल सम मतलब सबको ऐड करना, टोटल सम मतलब, तो लेट्स ऐड एवरीथिंग। 4 + 4 + x - 2 + x + 1 + x + 3 + 12 + 13 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितना ऑब्जर्वेशंस है 7 अपॉन 7, ये हो गया मीन का फॉर्मूला, इक्वल्स n is 7, so 7 + 1 upon 2. Okay, now solve this. 4 + 4 8, 8 - 2 6, 6 + 1 7, 7 + 1 7 + 3 10, 10 + 12 22, 22 + 13 35। नंबर्स को मैं जब ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 35, x + x + x 3x है, so 35 + 3x upon 7. Okay, and 7 + 1 is 8, 8 upon 2, 8 upon 2 मतलब फोर्थ टर्म, बरोबर, सही है। So 35 + 3x upon 7 equals fourth term, fourth term मतलब 1 2 3, this is the fourth term, fourth term is x + 1, so यहाँ पे लिखो x + 1 and now solve this. Plus 3x, this 7 will go here and get multiplied, you will get 7x + 7, 7 को यहाँ लाओ, 35 - 7 equals 7x - 3x, so 28 equals 4x, so x will be 7, you will get x as 7. सम हुआ नहीं है, सम को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। What have they said in the question? Find x and the median. तो x मिल गया, अब मीडियन क्या होगा, क्या था, क्या मीडियन, मीडियन क्या था x + 1, यही मीडियन है ना, फोर्थ टर्म x + 1, तो मीडियन क्या होगा x + 1 मींस 7 + 1 मतलब 8।
Next, question number 16. Done? Question 16. The following numbers are arranged in ascending order. Find x and the mean if their median is 10. मतलब जो numbers है they are arranged in ascending order, तो हमें arrange करने की जरूरत नहीं है, तो they are already arranged in ascending order. 4, 7, x plus 1, x plus 5, 15 and 20. Okay, and their median is 10. Median is already given as 10. We have to find x and we have to find the mean. दोनों चीज ढूंढनी है. ठीक है, तो पहले हम मीडियन दिया हुआ है तो पहले मीडियन का ही फॉर्मूला लेता हूँ. सही है कि नहीं है? मीडियन दिया हुआ है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? पहले देखना पड़ेगा the number of terms are odd or even. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of terms are 6. So what is the formula for median if the number of terms are even? Here the number of terms are even. So the formula will be n upon 2 plus n upon 2 plus 1 upon 2. Okay. N is how much? N मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n is 6. Number of terms 6 है. ठीक है. So median will be equal to 6 upon 2 plus 6 upon 2 plus 1 upon 2. 6 upon 2 मतलब थर्ड टर्म, थर्ड प्लस ये मैंने बताया था, अगर ये थर्ड टर्म है तो ये नेक्स्ट ही होता है फोर्थ टर्म. ढूंढ भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 अपॉन 2 मतलब 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा फोर्थ टर्म. तो जो यहाँ पे आता है उसका नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आता है हमेशा. तो दिस इज थर्ड टर्म प्लस दिस इज फोर्थ टर्म अपॉन 2. व्हाट इज द थर्ड टर्म? 1, 2, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म. ठीक है. सो थर्ड टर्म इज x प्लस 1, फोर्थ टर्म इज x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 upon 2. And the median is already given. Median is 10. So यहाँ पे m की जगह पे I can write 10. Now just solve this. You will get the value of median. Sorry, x. So 2 into 10 is 20 equals 2x plus 6. This 6 will come here. 20 minus 6 is 2x. So 14 is 2x. X is 7. I think you're not able to see it. X is 7. Okay. Now we have to find the mean also. तो mean तो easily ढूंढ लेंगे. Mean में क्या होता है? सबको ऐड करो. 4 plus 7 plus x plus 1 plus x plus 5 plus 15 plus 20 upon कितने टर्म्स है टोटल? 6. और x की जगह पे 7 लिखना है. सिंपल. डू इट. What is the answer you are getting?
4 plus 7 plus this is x is 7. That's it for today. Now you will have homework. See, we have almost completed the chapter. In the next video, I'll take the two sums which are left, those two sums, and from the miscellaneous, there is one or two sums which will need discussion. Okay. So your homework will be, you have to solve 15a. Okay. All these once again. Okay. I'm writing twice. Twice means एक बार तो आपने मेरे साथ कर लिया है, एक और बार सॉल्व करना है. ठीक है. क्लास वर्क, होमवर्क both. 15a, 15b till question number 16. 1 to 16 हमने किया है. करेक्ट. मिसलेनियस में 1 to 5. Miscellaneous 1 to 5. And all solved examples. This will be your homework for the next maths class. Okay. Whatever doubts, if you have any, you will clear it in the next class. जब next live lecture होगा. और जो 2 sum 3 sum pending है, वो भी मैं तभी कर दूंगा. So the chapter will be done along with the doubts. Okay. This is the homework. Submission will be on Monday. Physics test will probably be weekend में होगा, weekend. Okay, that's it for today.